Hey guys, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 28th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main content. So we'll start with some two extra news clippings, and today we'll be focusing on two main issues, that is the explained series in the Indian Express. One is based on the CT value of the COVID-19 report, RT-PCR. What is CT value? CT value क्या है, RT-PCR टेस्ट में इसको कैसे यूज़ करते हैं and all. And second is again news from a doctor that what are the next steps to be taken to fight this COVID-19. As you know, the conditions are very getting worse and worse day by day. The cases are increasing, the oxygen demands are increasing, supply is not matching, and so we are able to see some unhealthy, unwishful dresses, unwishful images in the news channels, societies and etc. So I request all you to kindly keep at home, stay safe, and keep only outside when it is very much urgent, and keep supporting your family and others. If you can help them. Otherwise, the news are filled with COVID-19 cases and their related oxygen demand and so on. So it is very difficult to find out some important news and analysis for your exam perspective. But we have find out some important news and perspective. So we'll see one by one. First news is oxygen crisis, more than a lack of tankers. So the government has affidavit, सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है. द ओनली थिंग इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम. ओके, सो जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स, सप्लाई करना. मोस्टली आप देखेंगे जो ऑक्सीजन प्लांट्स है वो इन द इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, एंड दैट इज़ इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, मोस्टली एट झारखंड, ओडिशा, इन जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट है, क्योंकि इन जगह क्या मिनरल रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द आयरन और इंडस्ट्रीज़, एंड वहाँ से इनको लाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द क्रायोजेनिक सिलेंडर्स. नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास ये क्रायोजेनिक सिलेंडर्स कम है. क्रायोजेनिक्स मीन्स ठंडे सिलेंडर्स, कोल्ड. Such cylinders whose temperature is below 0 degrees Celsius. Since we are having lack of such cryogenic cylinders, we are having problem in the transportation. So oxygen generation we are comparatively good. So the government has given affidavit. सरकार ने कोर्ट में ये affidavit देकर कहा है कि सर we have enough oxygen to provide for the people, but the only thing is the supply. And since the cryogenic cylinders are less, and that is why the supply is taking a big problem. एम्प्टी सिलेंडर्स को तो प्लेन में लाया जा सकता है, लेकिन भरे हुए सिलेंडर्स को नहीं लाया जा सकता बिकॉज ऑफ द अदर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज़ वाई वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, एंड वी नीड टू सेट अप सम important and dedicated transportation route along with some cryogenic cylinders, because the generation capacity is well and good. The only problem is the logistics. Second is सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी कैन नॉट बी अ म्योर स्पेक्टेटर. ठीक है, तो स्पेक्टेटर बन के हम नहीं रह सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट has said कि जो कंडीशन ख़राब हो रही है, इस देश में महामारी बढ़ रही है, सो वी कैन नॉट बी अ म्योर स्पेक्टेटर. वी विल हैव टू टेक पार्ट इन दिस एंड वी विल टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस. ओके, सो स्वतः संज्ञान लेंगी चीज़ों का अगर उनको लगेगा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मिस मैनेज हो रही है, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ पेंडेमिक एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी. ऐसा कंडीशन को इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो एज वी नो इन डेमोक्रेसी, जब दो ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो उन दोनों को चलाने के लिए, उन दोनों को टाइट करने के लिए, उन दोनों को ओवरसी करने के लिए जुडिशरी ही हर बार आगे आती आई है. और इस बार भी लोगों की उम्मीद जुडिशरी से ही है. आपको रिसेंटली पता होगा रिसेंट जजमेंट में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इवन द हाई कोर्ट्स, स्पेशली द केरला हाई कोर्ट और द तमिलनाडु हाई कोर्ट हैज़ कॉल्ड इलेक्शन कमीशन रेस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो उन्होंने अटेम्प्ट मर्डर का केस लगाने तक की बात कह दी इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि उन्होंने इस टाइम पर इलेक्शन करवाए हैं इसके लिए. So since the courts are taking a very serious and very strict sides on these kind of pandemics, so it is now in the hands of court to manage the system, because legislature and executive officially so it has been failed, especially in cases of states like Uttar Pradesh, Delhi. The government system has been failed. Now it has only been approved by the Supreme Court of India or their respective high courts to come into the matter and play and then guide the proper guidance for properly प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड अदर सर्विसेज. सो इसी तौर पे इसी तर्ज पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया सिचुएशन ख़राब हो रही है एंड वी आर अपॉइंटिंग अ जुडिशियल ऑफिसर. सो वी आर अपॉइंटिंग अ जुडिशियल ऑफिसर टू सी जो कंडीशन चल रही, क्योंकि हमें आप लोगों के ऑफिसर्स पे, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, IAS IPS, सरकार के हेल्थ सर्विस ऑफिसर, फैमिली हेल्थ एंड मिनिस्ट्रीज,
ऑफिसर्स, उन पर हमें भरोसा नहीं है। हम खुद से एक जुडिशियल ऑफिसर जैसे कि इलेक्शंस में इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इस तरह के हम एक जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें क्या चल रही हैं, जो जजमेंट हमने दिए हैं या जो नियम सरकार ने तय किए हैं क्या वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं, और अगर नहीं होंगी देन हम स्ट्रिक्ट और कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। आपने सुना होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार अगर आपसे नहीं चल रही है मिस्टर केजरीवाल तो काइंडली सबमिट इनटू सेंटर को सबमिट कर दीजिए। वी विल इमर्ज द प्रेसिडेंट रूल इन द दिल्ली गवर्नमेंट। इस तरह के जो रूल्स हैं, इस तरह के नियम में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वो अपनी सख्ती दिखा रही हैं, वो ज़रूरी भी है। बिकॉज आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि इन स्टेट्स में, खास करके इन राज्यों में, गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ फेल्ड, कम्प्लीटली केओस हो चुका है। उसको ओवरटर्न करने के लिए जुडिशरी जो है वो मूक स्पेक्टेटर नहीं बन के रह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मूक दर्शक बन के नहीं रहेंगे, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम सुओ मोटो कॉन्ग्रेसेंस लेंगे, यानी खुद से स्वतः संज्ञान लेकर हम इस पर आगे ज़रूर बढ़ने वाले हैं। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नाउ लेट्स और मूव ऑन टू द सम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस। सो रिसेंटली आपने न्यूज़ में काफ़ी चर्चा सुनी होगी RT-PCR टेस्ट और उसके CT वैल्यूज़ के बारे में। तो उन CT वैल्यू का पूरा एक एक्सपेंड सीरीज़ है कि CT वैल्यू क्या होती है, RT-PCR में क्या होती है, CT वैल्यू क्या दिखाती है और CT वैल्यू का ट्रांसमिशन रेट से क्या लेना है, CT वैल्यू क्या किसी बीमारी की या कोविड की सीवियरिटी को भी डिपेंड करती है या नहीं करती है। सो इन सारी चीज़ों पर एक एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। नाउ विल सी वन बाय वन। सो CT वैल्यू इज़ मोस्टली रिफर्स टू द नंबर ऑफ साइकिल्स। सो CT वैल्यू को हम साइकिल पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली इट इज़ कि वायरस को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि वी टेक ए स्वैब। इन RT-PCR में नेजल स्वैब एंड थ्रोट स्वैब का कलेक्शन किया जाता है। देन आफ्टर उससे RNA निकाला जाता है, उस RNA से फिर DNA बनाया जाता है। वो DNA का फिर एम्प्लीकेशन होता है। एम्प्लीकेशन इज मल्टीपल DNA की कॉपी बनाई जाती है और फिर उन पर टेस्ट किया जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस में RT-PCR इसको टेस्ट को कहते हैं RT-PCR। इसमें एम्प्लीफिकेशन दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल DNA इज डन ड्यूरिंग दिस टेस्ट एंड इन एवरी साइकिल, हर साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में क्या करेंगे 2 कॉपी बनेगी, दूसरे में 4, चौथे में 6, 8, 10, इस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाती हैं। और जितने साइकिल ज़्यादा चलाने पड़ते हैं, यानी कि अगर पहले साइकिल में आपको टेस्ट मिल गया, वायरस डिटेक्ट हो गया, तो आपकी CT वैल्यू होगी 1। दूसरे साइकिल में हुआ यानी कि 2 से लेकर 4 के बीच में हुआ, देन आपकी CT वैल्यू होगी 2। कहने का मतलब ये है कि CT वैल्यू अगर कम होती है, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वायरल लोड आपके बॉडी में ज़्यादा है। दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज CT वैल्यू इज़ द टेस्ट और DNA और द RNA process has to undergo attachment amount of cycle. So if CT value is 1 then एक साइकिल में ही वायरस मिल गया, यानी कि वायरस लोड आपके बॉडी में, वायरल लोड बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन द बॉडी एंड इट इज़ ईजिली डिटेक्टेबल। दैट मीन्स यू हैव मोर एंड मोर वायरल लोड। सिमिलरली CT वैल्यू इज़ 2 देन इट इज़ कंपैरेटिवली लेसर। ओके, सो 2 साइकिल चलाने के बाद वायरस डिटेक्ट हुआ। सिमिलरली CT वैल्यू 3 है तो 3 साइकिल चलाने के बाद वायरस डिटेक्ट, यानी कि CT वैल्यू 1 के कंपैरिजन में CT वैल्यू 3 में वायरल लोड जो होगा वो कम होगा। यानी कि बॉडी में जितना ज़्यादा वायरस होगा, जितना ज़्यादा वायरस कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा उसकी रिप्रोडक्शन रेट होगी, उतना कम CT वैल्यू होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं CT वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायरल लोड। यानी बॉडी में जितनी वायरल लोड है, जितनी वायरस की संख्या है उतनी कम होगी, उतना ज़्यादा CT वैल्यू होगा। और सिमिलरली CT वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा वायरल लोड ज़्यादा होगी। ये एक सिंपल डेफिनेशन है CT वैल्यू की, इसको साइकिल वैल्यू कहते हैं इन ए सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज। ठीक है, सो स्वैब कलेक्शन में क्या करते हैं, हम RNA निकालते हैं, RNA से फिर DNA बनाते हैं। RNA इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड DNA इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और उससे DNA से फिर हम एक उसके जेनेटिक कोडिंग करते हैं। वो जेनेटिक कोडिंग का फिर एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एक साइकिल में 2 कॉपीज़ बनाई, फिर 2 साइकिल में 4 कॉपी बनाई, 4 साइकिल में 16 कॉपीज़ बनाई। इस तरह से कॉपीज़ बनाते रहते हैं। जितनी जितनी साइकिल बढ़ती रहती है उतनी कॉपी बढ़ती रहती है, और जितनी कॉपी ज़्यादा बढ़ती हैं दैट मीन्स कि उतना ज़्यादा वी हैव टू फाइंड एंड सर्च, उतनी ज़्यादा साइकिल चलानी पड़ती है। एंड दैट इज़ वाई द मोर द CT वैल्यू द लेस द वायरल लोड एंड द मोर द वायरल लोड द लेस द CT वैल्यू। अगर CT वैल्यू कम होगी तो वायरल लोड ज़्यादा होगा, CT वैल्यू ज़्यादा होगी तो वायरल लोड कम होने वाला है। सो द हायर नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड इट इम्प्लाइज virus went undetected and cycle has been lower. Similarly उल्टा lower CT value means fewer cycle, यानी कि कम साइकिल लगेंगे। अकॉर्डिंग टू ICMR ये कहता है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कि हर वो पेशेंट जिसकी CT वैल्यू जो है 35 से कम है, यानी कि 35 साइकिल तक ढूंढने पर
जिसमें वायरल लोड मिले उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। उससे ज़्यादा है यानी कि 35 से लेके 40 के बीच में है तो फिर उसे हम कोविड नेगेटिव कहेंगे। इवन वायरस मिलता है तो भी दैट इज़ अ डेड वायरस। इसका मतलब यह है कि उसमें वायरस तो है लेकिन दे आर डेड नंबर और उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो एज पर द लेटेस्ट ICMR डेटा, all patients with a CT value less than 35 may be considered as positive, while those CT value between 35 and more will be considered as COVID negative. So one can think of CT value as a measure of transmission. Now इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब CT वैल्यू क्या वो सीवियरिटी के साथ भी जुड़ी हुई है, यानी कि अगर CT वैल्यू ज़्यादा है या कम है तो क्या आपको जो कोविड-19 हुआ है वो कितना सीवियर, उतना खतरनाक है या उतने डेंजरस स्टेट में या उतना ज़्यादा गंभीर है, आपको समझ रही है। तो इस पर अभी तक ICMR का डेटा कुछ खास कहता नहीं, अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय है और बीमारी की गंभीरता से CT वैल्यू का कोई लेना देना साबित नहीं हुआ। हाँ, साबित ये हुआ है कि CT वैल्यू जितनी होगी उतनी ज़्यादा आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी कि बीमारी को फैलाया जा सकता है। तो CT वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ ट्रांसमिशन पोटेंशियल। सो इफ़ देयर इज़ मोर वायरस इन माई थ्रोट एंड नोज, अगर किसी की व्यक्ति के नाक में या गले में ज़्यादा वायरस है तो उसको बड़े अच्छे से ट्रांसमिट कर सकता है, यानी कि उसकी CT वैल्यू कम होगी। CT वैल्यू कम यानी कि बीमारी को फैलाने की क्षमता ज़्यादा, क्योंकि वायरल लोड उसमें क्या है, ज़्यादा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, CT वैल्यू कम तो वायरल लोड ज़्यादा, और जब वायरल लोड ज़्यादा तो बीमारी को फैलाने की क्षमता भी यानी कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली जब CT वैल्यू ज़्यादा होगी तो वायरल लोड क्या होगा, वो कम होगा और बीमारी को फैलाने की यानी कि ट्रांसमिशन की पावर भी क्या होगी, कम होगी। तो एक डॉक्टर ज़मीन जो वायरोलॉजिस्ट हैं, इंडिया के जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका ये सीधा सिंपल कहना है कि अगर CT वैल्यू कम है यानी कि मेरे गले या नाक में वायरस की संख्या ज़्यादा है और इस तरह से मैं इस बीमारी को ज़्यादा फैला सकता हूँ, यानी कि CT जो वैल्यू है वो बीमारी की गंभीरता से उसका कोई खास संबंध अभी तक साबित नहीं हुआ है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिलेशन विद द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ with the CT value, but there is a definite relation between the CT value and the rate of transmission of disease from that person to other person, यानी कि उस व्यक्ति जिसकी CT वैल्यू कम है, ये उससे रिसर्च में पाया गया है कि जो व्यक्ति की CT वैल्यू कम है वो बीमारी फैलाने में अधिक कारगर होता है इन कंपैरिजन टू वो व्यक्ति जिसकी CT वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन CT वैल्यू अपने आप में बीमारी की गंभीरता को दर्शाने में अभी तक सक्षम नहीं हुआ, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की CT वैल्यू कम हो लेकिन उसकी बीमारी की गंभीरता जो है वो ज़्यादा हो। सिमिलरली उसका उल्टा, यानी CT वैल्यू ज़्यादा हो यानी कि वायरल लोड कम हो लेकिन फिर भी उसकी बीमारी की गंभीरता जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सो बीमारी की गंभीरता यानी सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू द CT वैल्यू ऑफ द RT-PCR टेस्ट। A patient of low CT value which may her viral load is high enough to be detected rapidly and she may still be asymptomatic, यानी कि साफ साफ कहा गया है कि CT वैल्यू भले ही कम हो, वायरल लोड भले ही ज़्यादा हो लेकिन फिर भी वो एसिम्टोमेटिक हो सकता है। सिमिलरली CT वैल्यू ज़्यादा हो, वायरल लोड कम हो, फिर भी वो जो है वो सिम्टम दिखा सकते हैं। CT वैल्यू का जो रिलेशन है वो बीमारी की सीवियरिटी यानी कि बीमारी की गंभीरता से नहीं, उसके फैलाने की क्षमता और शक्ति में हो सकता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की CT वैल्यू शुरुआती दिनों में भले ही कम हो लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वायरस की प्रजनन दर है, द रिप्रोडक्शन रेट द वायरस इज़ वेरी हाई। सो हो सकता है कि मंडे को आपने जांच करा और आपकी CT वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि 30 के आसपास हो, क्योंकि यानी 30 साइकिल चलाने के बाद, 30 साइकिल का एक्सपेंडिशन या रिप्रोडक्शन का 30 साइकिल के एम्पलीफिकेशन के बाद आपको एक वायरस मिला। लेकिन ट्यूसडे या थर्सडे पहुँचते पहुँचते वायरस की संख्या ज़्यादा हो और वो CT वैल्यू घट के आ जाए 4। तो ये क्या हो रहा है कि शुरुआती दिनों में ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति ताज़ा यानी कि नए नए संक्रमित व्यक्ति हैं, दोज पर्सन्स हु आर न्यूली इफेक्टेड पर्सन्स मे गेट वेरी इन द CT वैल्यू, इनकी CT वैल्यू जो पहले जिनकी ज़्यादा हो आगे चलकर कम हो सकती है। सिमिलरली इसका उल्टा, जैसे कि किसी व्यक्ति में बीमारी अब लगभग ठीक होने के कगार में हो लेकिन फिर भी उसके शरीर में वायरस जो है वो कुछ दिनों तक रहता है, तो उसकी CT वैल्यू अगर हमने शुरुआती पल में जांच की, सपोज करें कि 20 मिला लेकिन वो कोविड से ठीक हो चुका है और फिर बाद में हम अगर जांच करेंगे तो फिर CT वैल्यू क्या होगी, 20 से अचानक जाके वो फिर और जाके 35 जाएगी, क्योंकि वायरस तो मर चुका है तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसलिए CT वैल्यू पर डायरेक्टली बीमारी की गंभीरता से रिलेटेड कोई अभी तक एनालिसिस नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता लगा चुका है कि जिस व्यक्ति की CT वैल्यू कम होती है
वो व्यक्ति दूसरों को बीमारी ज़्यादा फैला सकता है, क्योंकि उसके पास वायरल लोड बहुत ज़्यादा। और ये भी है कि आज अगर CT वैल्यू कम है तो कल हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जाए, और आज अगर ज़्यादा है तो कल वो कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्टेज पर है। यानी कि वो नया व्यक्ति जो नया नया संक्रमित हुआ है उसकी CT वैल्यू भले ही आज ज़्यादा हो तो कल वो कम हो सकती है। कल कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि वायरल लोड बढ़ जाएगा। वायरल लोड तब बढ़ेगा, यानी वायरस की रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जब बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आज वायरस को ढूंढने में 10 दिन लग रहे हैं, तो कल अगर जब वायरस की क्षमता बढ़ जाए तो कल वायरस को ढूंढने में 5 दिन लग जाए। और सिमिलरली इसका विपरीत भी हो सकता है कि आज उसकी CT वैल्यू कम है, धीरे धीरे टिक जाए, जब वो ठीक होने की परिस्थिति में है तो उसकी CT वैल्यू बढ़ जाए। तो इसलिए CT वैल्यू से बीमारी की गंभीरता कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बीमारी कितनी तेज़ी से फैला सकता है उसका एक रिलेशन ज़रूर है। तो CT वैल्यू डज नॉट कोरिलेट विद द सीवियरिटी, इट इज़ ओनली रिलेटेड विद द इन्फेक्टिविटी ऑफ द वायरस। अब एक आर्टिकल देखते हैं कि ये डॉक्टर फारूक उदवाड़िया, जो कि जे हॉस्पिटल्स में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इन्होंने कोविड से लड़ने के लिए अब हाल ही में 3 स्टेप बताए हैं। जो स्टेप वैसे तो हम काफ़ी सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जाने माने डॉक्टर हैं, जे हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनकी बात को सीरियसली ले लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसे उन्होंने कुछ खास नियम बताया नहीं है जो पहले से हमने नहीं जानते हो। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया। तो उन्होंने 3 तरह के ट्रीटमेंट है। पहले कहा है बैग बोरो स्टील रैंसम, जो करना है, यानी कि भीख मांगो, चोरी करो, डाका डालो, ठीक है, फिरौती करो, जो करना है करो, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आओ कहीं से भी। तो ये सरकारों के लिए नियम बता रहे हैं, आम आदमी के लिए नहीं, आपको चोरी नहीं करनी है। सो इट इज़ रिवन फॉर द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट बॉडीज़ कि आप कहीं से भी कुछ भी करके चोरी करो, उठाओ, लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, बगल वाले देश पे कब्जा करो, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आओ फर्स्ट। सेकेंड कि उसकी लॉजिस्टिक प्लानिंग करो। जो हमने पहले वाले न्यूज़ में देखा कि सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है, कमी है हमारे पास लॉजिस्टिक। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन को उस क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक सिलेंडर में ही लाया जा सकता है, तो वो सिलेंडर की कमी है हमारे पास। और इसी वजह से ऑक्सीजन बन तो रहा है, लेकिन लाने, ले जाने, उसको खाली करने, अनलोडिंग वाले प्रॉब्लम है, इसी वजह से देर लग रही है। लेकिन हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन करने की क्षमता में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता में दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से जो आज का जो परिस्थितियाँ हैं वो विकट रूप ले चुकी है। तो पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि बैग बोरो स्टील पे इवन रैंसम टू गेट मोर ऑक्सीजन एंड विद अ बेटर लॉजिस्टिक प्लानिंग। सेकंड ही सेइंग कि 3 इंपॉर्टेंट ड्रग है, यानी 3 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। पहला तो खुद ऑक्सीजन भी एक दवाई है। दूसरा डेक्सामेथोन, जिसको हम डेक्सोना भी कहते हैं, अगर आपने कहीं सुना हो, कोई मेडिकल लाइन से हो, तो उसको डेक्सोना नाम का इंजेक्शन देते हैं कि जिस व्यक्ति का जब ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है तो उसे डेक्सोना दिया जाता है, ताकि उसकी जो ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन है, जो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है बॉडी में, वो बना रहे। तो ये जो है डेक्सामेथासोन ये। एंड थर्ड इज़ ब्लड थिनर, हेपारिन नामक इंजेक्शंस होते हैं जो ब्लड को थिन रखते हैं। होता है क्या है, कोविड-19 में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जब वायरल लोड बढ़ जाता है, तो खून के थक्के जमने लगते हैं। खून में मोटे मोटे थक्के, यानी खून जो है हल्का हल्का जमने लगता है कहीं कहीं पर, और इसी वजह से क्या होता है, वो जमा वो खून फिर फ्लो करने में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जैसी उससे होती है, तो खून के थक्के बनने लगते हैं और ब्लड फ्लो करने में मुश्किल होती है। जब ब्लड हार्ट तक नहीं पहुँच पाता है, तो आप देखे होंगे 90 to 95% केस में हार्ट अटैक इज़ द रीज़न ऑफ डेथ। ठीक है, 2 तरह के, एक तो पैनिक अटैक हो जाता है, लोग घबरा के मर जाते हैं, या फिर ये होता है हार्ट अटैक, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जिसे कहते हैं, कि बहुत सारे अंग काम करना एक साथ बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है जो मोटा हो जाता है और हार्ट उसको फिर पंप नहीं कर पाता है, वो फंस जाता है, और दैट इज़ वाई हार्ट चोक हो जाता है। और अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग ऑर्गन्स में जब ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो देयर इज़ अ सीवियर डेथ। तो इनका कहना है कि 3 जो दवाई हैं उनका कहीं से भी कहीं करके आप जुगाड़ करिए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा डेक्सामेथासोन, और तीसरा है ब्लड थिनर्स जैसे कि हेपारिन। वो ब्लड थिनर ज़रूरी है ताकि खून को पतला रखा जा सके। और इसीलिए आप देखेंगे कि डायबिटीज़ और शुगर वाले पेशेंट में ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि उनके खून तो अपने आप में शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो खून अपने आप में गाढ़ा होता है। उसको पतला करने के लिए ऑलरेडी उनको हेपारिन और इंसुलिन चाहिए, और इसी वजह से उन पर एक खतरा ज़्यादा हो जाता है। तीसरा उपाय बताते हैं कि क्रिटिकल केयर, जो ICU और इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, ICU और ICCU, इन सब का मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोर बेड्स, मोर पेशेंट्स। तो जैसे जैसे चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं और 3-4 दिन में बड़े बड़े टेंट लग जाते हैं, वैसे ही भारत के पास ये क्षमता है, भारत में इतनी कैपेसिटी है कि लोग चाहें एक दिन में हम कम से कम 1 करोड़ बेड बना सकते हैं। जैसे कि आप देखा होंगे बड़े बड़े नेताओं की रैली होती है, फटाफट बड़े बड़े भयानक स्टेज लग जाते हैं, मूवमेंट हो जाता है, लोग आ जाते हैं, रैली में लोग आ जाते हैं। इस तरह की जो लॉजिस्टिक प्लानिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ कर सकती हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? तो सरकार को ऐसे क्रिटिकल केयर बेड
बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े म्यूनसिपालिटीज़ हो, बड़े बड़े लोकल बॉडीज़ हो, एनजीओ हो, टेंट्स हो, डेकोरेशन हो, मैरिज प्लानिंग हो, वेडर प्लानर्स हो, उन सबको साथ में लेकर जल्द से जल्द जितना हो सके उतना जल्दी क्रिटिकल केयर यूनिट्स और बेड्स की तैयारी करनी चाहिए। वैक्सीनेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए एंड माइक्रो कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन पूरे लॉकडाउन करने के बजाय कुछ उन खास जगहों पर आप कंटेनमेंट करें जहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ पर बेड्स की कमी हो रही है, तो उन जगहों पर आप लॉकडाउन कर सकते हैं, उन जगह पर आप कंटेनमेंट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन में भी पहले उन जगहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहाँ पर केसेस अचानक या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। वैसे ये सारी बातें पहले से पता ही थी, इन्होंने इसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो अगर आपको कहीं आंसर में लिखना हो तो आप ये स्टेप्स को लिख सकते हैं। इट इज़ propounded by the doctors of Sir J.J. Hospital and Breach Candy Hospital, etc. So this was all for today's news. Kindly be at home, stay safe, and do not come out of your home unless it's very important. Get vaccinated. We can together fight this virus and will defeat him. Thank you. Bye bye. Jai Hind.